Okay, student. Today we are going to study some theoretical information because new concept we are going to start. That is two-column cash book. In earlier lectures we studied simple cash book. Actually, in simple cash book there is only cash transactions is being recorded to the simple cash book, and all transactions, if cash transaction is there, that is being recorded to the cash book. But here in two-column cash book, that is cash transaction and bank transaction, both transactions are recorded in the double column cash book, that is two-column cash book. Actually, nowadays mostly all the business organizations, they discharge their payment and they receive their payment through banking transactions. All monetary transactions are being handled by the bank. So bank play a very important role in providing the various services to the traders. Why? Because when the transaction is being carried out by the bank, when the payments and receipts are being made by the bank, so it is having the evidence and it is having the record with the bank also, as well as double column, this is two-column cash book is being prepared by the businessman, and therefore double column cash book is playing very important role. It accepts deposit from the customer and allow withdrawals by the way of cash or check or various net banking transaction. Deposit, withdrawals, even payments, cash, through check or by the net banking transaction. So these are the different activities, that is here it is given very clearly: deposit, withdrawals, by cash or by check or by the net banking transaction. So in addition, in this bank provide a number of functions. What are the different function is being discharged by the bank? Here it is given, like payment by checks and draft, loan facility, cash credit. For your kind information, one thing I would like to tell to all of you, that every business organizations, they open their current account to the particular bank, that is called company banker, and the current account holder have the different facilities like overdraft facility and check facility, number of withdrawal, number of deposit facility, net banking facility. These facilities are specially offered to the current account holder. So what are the different facilities is there? It is given, that is draft, loan facility, cash credit facility, collection of checks, and above all, safety of cash. Moreover, when a trader open a current account with the bank, he can avail overdraft facility. What is overdraft facility? Overdraft facility का मतलब क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ. This facility, in the overdraft facility, the businessman can withdraw more money than their standing balance. What is standing balance? उसके अकाउंट में जो बैलेंस है वो स्टैंडिंग बैलेंस है. अगर बिजनेसमैन, एक एग्जांपल बोलता हूँ मैं आप लोगों को, अगर बिजनेसमैन के अकाउंट में एक 50,000 का अगर बैलेंस है और उसको 4 लाख चाहिए बिजनेस करने के लिए, तो 50,000 से उसका बिजनेस नहीं हो रहा है, तो वो बैंक के पास में ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी के लिए एप्लीकेशन कर सकता है और उसको 4,50,000 रुपीज़ बैंक उसको एक्स्ट्रा अमाउंट
एज ए लोन देता है. So bank overdraft facility is the loan facility, and on the amount which is given by the bank, extra money, on that the bank charge the interest, and that interest is required to be paid by the businessman. सो दैट इज़ द ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी. इसका मतलब वेरी सिंपल मैं आपको बता दूं, खाते में जितना पैसा है अगर उससे ज़्यादा पैसा उसको चाहिए तो अगर वो करंट अकाउंट होल्डर है तो वो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी का ये यूज़ करके वो ओवर विड्रॉ कर सकता है, ओवर मनी विड्रॉ करके. लेकिन ये जो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी होती है ये ज़्यादा लॉन्ग पीरियड के लिए नहीं होता है, ये मोस्टली 6 मंथ 1 ईयर का होता है. और इसकी जो मैच्योरिटी है वो मैच्योर होने के बाद में बिजनेसमैन को वो पूरा पैसा वो रिटर्न करना पड़ता है बैंक को, लेकिन उसके ऊपर बैंक इंटरेस्ट चार्ज करती है. सो दिस मे बी आस्क्ड इन द ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस. एक बात और भी अभी मेरे को ध्यान में आया, मैं आप लोगों को बता दूं. अभी जो ये यूनिट टेस्ट आपका हो रहा है इसके अंदर आपको सारे MCQ टाइप क्वेश्चंस हैं और जो कि आपको ऑब्जेक्टिव टाइप्स है और जो कि आपको ये सारी चीज़ें नॉलेज होना चाहिए कि करंट अकाउंट होल्डर को कौन सी फैसिलिटी होती है, तो वहाँ पे आपके पास ये नॉलेज होना चाहिए. ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी. Overdraft facility is rendered by bank to only current account holder. This facility is not given to the saving account holder. ये सेविंग अकाउंट होल्डर को ये फैसिलिटी नहीं होती है. तो उसके बाद में अभी हम लोग बात करेंगे कॉलम्स का. डबल कॉलम कैश बुक में अभी एक बार तो क्लियर हो गई हम सभी लोगों को कि 2 कॉलम कैश बुक में अभी हमको कैश का ट्रांजैक्शन और बैंकिंग ट्रांजैक्शन दोनों भी ट्रांजैक्शन जिस कैश बुक में रिकॉर्ड होता है उसका नाम होता है 2 कॉलम कैश बुक. दैट इज कॉलम इन कैश बुक विथ कैश एंड बैंक कॉलम. So actually what is 2 column cash book? The cash book in which all cash transaction as well as banking transaction is being recorded, that cash book is called the 2 column cash book. So cash book with cash and bank column, that is 2 column cash book. So here it is given additional column is only bank column in receipt side as well as payment side also there will be bank column. Only banking transactions are recorded in the bank column and remaining cash transaction it will be recorded in the cash column. तो यहाँ पे ये दो चीज़ बहुत क्लियर हो गया हमारे लिए. जो कैश ट्रांजेक्शन होगा वो कैश वाले कॉलम में आएगा और जो बैंकिंग ट्रांजेक्शन होगा वो बैंक वाले कॉलम में आएगा. तो कैश ट्रांजेक्शन कैश में आएगा और बैंक ट्रांजेक्शन बैंक के कॉलम में आएगा. अब आ जाइए नीचे फॉर्मेट पे. ये फॉर्मेट पे आना है हम सब लोगों को. फॉर्मेट सामने स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है. सो इन अर्लियर व्हेन वी वेयर लर्निंग सिंपल कैश बुक तो उसमें 10 कॉलम्स थे, तो यहाँ पे आपको टोटल 12 कॉलम्स हो जाएंगे क्योंकि ये बैंक का ये कॉलम जो है ये यहाँ पे बढ़ जाएगा. ये रिसिप्ट साइड का बैंक कॉलम और ये पेमेंट साइड का बैंक कॉलम. तो ये 2 कॉलम यहाँ पे बढ़ जाएंगे डबल कॉलम 2 कॉलम कैश बुक में. बाकी सब जो कॉलम्स है वो सेम होगा. डेट, रिसिप्ट, आर नंबर मैंने आपको बताया ये रिसिप्ट नंबर बोलते हैं इसको. LF लेजर फोलियो बोलते हैं. कैश, कैश ट्रांजेक्शन ये कॉलम में सिर्फ कैश का अमाउंट आएगा जो कैश ट्रांजेक्शन होगा और बैंक में यहाँ पे जो बैंकिंग ट्रांजेक्शन होगा बैंक का अकाउंट आएगा, बैंक का अमाउंट आएगा. और ये फिर पेमेंट साइड का डेट, पेमेंट, वाउचर नंबर, LF, कैश एंड बैंक. तो यहाँ पे टोटल 12 कॉलम्स हो जाएंगे आपके. अब उसके बाद में यहाँ पे हम लोगों को ये देखना है कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ बैंकिंग ट्रांजेक्शन इन कैश विथ कैश एंड बैंक कॉलम. तो ये बैंकिंग ट्रांजेक्शन का कैसे कौन कौन सा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स है. एक बात याद रखना है हम सब लोगों को, जब तक हम अगर हमको BK में स्मार्ट बनना है, अगर हमें BK में स्मार्ट बनना है तो एक चीज़ हम सब लोगों को याद करनी पड़ेगी कि थियरीज नॉलेज बहुत मस्ट है. अगर आपको थियरी नॉलेज है देन डेफिनेट यू आर गोइंग टू बी ए वेरी साउंड पर्सनालिटी इन द
BK बुक कीपिंग। मोस्टली क्या होता है आजकल देख रहे हैं, स्टूडेंट जो है थेरेटिकल नॉलेज पे नहीं जाता है, वो थियरी, उसको लगता है कि ये बोर लगता है, थियरी इज बोरिंग सब्जेक्ट। नो, अगर आपको थियरी से प्रैक्टिकल में जाएंगे तब इजी लगेगा, लेकिन डायरेक्ट अगर आप प्रैक्टिकल में जाएंगे तो आप दो एक सम करेंगे वो आपको बाय हार्ट हो जाएगा, लेकिन वो कितने दिन के लिए, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, उसके बाद फिर से आपके माइंड से वो इम्प्रेशन खत्म हो जाएगा और फिर वो भूल जाता है, आपको फिर समझ में आता नहीं अरे हमने इसको कैसे सॉल्व किया था। लेकिन इफ वी हैव द थियरी नॉलेज, साउंड थियरी नॉलेज, then definite we are not supposed going to forget that, because it will have clear cut impression to our mind, because we know the things, we know the concept very clearly, because we read the theory and we knows everything very clearly. And therefore this is my humble request to all of you, put proper care on the theory. So when total receipt side is greater, देखो यहाँ पे दो बातें दिया गया है, मैं आपको बता देता हूँ, शॉर्ट में बता देता हूँ कि जब डेबिट साइड ज़्यादा होगा और क्रेडिट साइड ज़्यादा होगा तो वो बैलेंस जो होता है वो फेवरेबल बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस बोलते हैं। ये डेबिट बैलेंस का मतलब ही है कि फेवरेबल बैलेंस। व्हेन रिसिप्ट साइड इज ग्रेटर देन द पेमेंट साइड, तो वो आपका डेबिट बैलेंस होता है, फेवरेबल बैलेंस होता है। लेकिन यही चीज़ अगर आप पासबुक में देखेंगे तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे हटके आपको बताता हूँ। यहाँ पे आपके नॉलेज के लिए, आपके नॉलेज को बढ़ाने के लिए मैं थोड़ा सा अलग बताना चाहता हूँ। वो ये बात है कि अगर जैसे यहाँ पे मैंने बताया, ये आप कैश बुक के बारे में देख रहे हैं, ये आप कैश बुक के बारे में देख रहे हैं, तो कैश बुक में बैंक कॉलम का अगर डेबिट साइड बैलेंस ज़्यादा है और क्रेडिट साइड का बैलेंस कम है तो वो डेबिट बैलेंस है, मतलब फेवरेबल बैलेंस है। लेकिन यही चीज़ अगर पासबुक में आप देखेंगे तो इसका उल्टा होता है। पासबुक में अगर क्रेडिट बैलेंस ज़्यादा है और डेबिट बैलेंस कम है तो वो फेवरेबल बैलेंस होता है। ये दोनों बात आपको अच्छे से समझनी पड़ेगी। तो फिलहाल अभी आप इसके ऊपर ध्यान दो कि बैंक कॉलम जो कैश बुक, 2 कॉलम कैश बुक है, उसमें अगर डेबिट साइड का बैलेंस ज़्यादा है और क्रेडिट साइड का बैलेंस कम है तो वो डेबिट बैलेंस है। और जस्ट सेम इसके अपोजिट, अगर क्रेडिट बैलेंस ज़्यादा है, मतलब सिंपल, अगर और सिंपल बताऊं, इसका मतलब ये है कि अगर पेमेंट ज़्यादा है और रिसिप्ट कम है तो ऑफकोर्स वो अनफेवरेबल बैलेंस है, मतलब वो क्रेडिट बैलेंस है, जिसको आप क्या बोलते हो, ओवरड्राफ्ट। ये देखिए यहाँ पे जो लास्ट में दिया है, जिसको हम लोग ओवरड्राफ्ट बोलते हैं। ओवरड्राफ्ट सिचुएशन में ऐसा ही होता है। ओवरड्राफ्ट सिचुएशन में क्या होता है, आपका पेमेंट ज़्यादा दिखेगा लेकिन रिसिप्ट कम होगा, तो वो आपका ओवरड्राफ्ट सिचुएशन क्रिएट करेगा, वो आपका ओवरड्राफ्ट होगा, जो आपका बैलेंस होगा वो नेगेटिव होगा, तो ये आपका ओवरड्राफ्ट होता है। मतलब जो बैलेंस आएगा उसको हम ओवरड्राफ्ट शो करते हैं। तो ये यहाँ पे दो इम्पोर्टेंट बात है। उसके बाद में व्हेन डेबिट बैलेंस ऑफ बैंक अकाउंट इज गिवन, इसका मतलब है कि वो बैलेंस BD होगा, ब्रॉट डाउन होगा ओपनिंग बैलेंस। और व्हेन क्रेडिट बैलेंस ऑफ बैंक अकाउंट इज गिवन तो वो ओवरड्राफ्ट बैलेंस होगा। यहाँ पे ये दो बातें क्लियर कट बताया है। उसके बाद अब यहाँ से आपको थोड़ा सा कॉशियसनेस बढ़ाना पड़ेगा, यहाँ थोड़ा सा समझना पड़ेगा आपको, क्योंकि यहाँ मोस्टली इसी पॉइंट पे बच्चे मिस्टेक करते हैं डबल कॉलम 2 कॉलम कैश बुक में। देखो, अगर बैंकिंग ट्रांजैक्शन होगा तो वो बैंकिंग ट्रांजैक्शन में ट्रांजैक्शन थ्रू चेक भी होता है, ट्रांजैक्शन थ्रू कैश भी होता है। तो अगर चेक के थ्रू ट्रांजैक्शन हो रहा है तो यहाँ पे आपको कंडीशंस दिया है, वो कंडीशंस आपको देखना है। यहाँ पे देखो, मैं आपको बता दूं, चेक कैन बी रिसीव्ड फॉर कैश सेल्स, कमीशन, डिविडेंड, इंटरेस्ट और सेटलमेंट ऑफ अकाउंट बाय डेटर्स। डेटर्स मतलब हमारा कस्टमर जो होता है उसको हम लोग डेटर्स बोलते हैं। हमारे कस्टमर्स को मतलब इन द सेंस बिजनेसमैन के कस्टमर को हम लोग क्या बोलते हैं, डेटर्स। तो यहाँ पे ये क्लियर है, ये सारी चीज़ों के लिए चेक से ट्रांजैक्शंस होता है।
तो यहाँ पे सबसे पहला ही पॉइंट है क्रॉस चेक रिसीव्ड। अगर क्रॉस चेक मिला, सिर्फ आपके ट्रांजेक्शन में इतना इंफॉर्मेशन दिया है कि क्रॉस चेक मिला, तो अगर क्रॉस चेक मिला है, व्हेन क्रॉस चेक इज रिसीव्ड इट इज रिकॉर्डेड ऑन द रिसीव्ड साइड ऑफ कैश बुक इन द बैंक कॉलम। ये बात ध्यान देना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है टू कॉलम कैश बुक में। अगर क्रॉस चेक मिला है, यहाँ क्रॉस वर्ड पे ध्यान देना है आपको। क्या अगर ट्रांजेक्शन में ऐसा क्लियरली दिया है, क्रॉस चेक हैज बीन रिसीव्ड फॉर सो एंड सो अमाउंट फ्रॉम सो एंड सो पार्टी, तो देन व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू मेक द इफेक्ट ऑफ दैट ट्रांजेक्शन टू द रिसीव्ड साइड ऑफ कैश बुक इन बैंक कॉलम। ये भी ध्यान देना है कौन से कॉलम में करना है, यहाँ पे क्लियरली दिया हुआ है बैंक कॉलम में करना है। ये थियोरेटिकल इंफॉर्मेशन है, अगर आपको थियरी मालूम होगा तो ही आप प्रॉपर प्रैक्टिकल कर पाओगे। देखो कोई भी, मैं आपको एक बात क्लियर बोलना चाहता हूँ, यू आर इन द 11th स्टैंडर्ड नाउ। एक बात जान लो सभी बच्चे लोग कि ये जो बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी ये हमारा सब्जेक्ट है ना, ये सोशल साइंस है। ये एक सोशल साइंस है और इसको भी एक एथिक्स है, इसको भी एक नॉर्म्स है। वो एथिक्स, वो नॉर्म्स, वो रूल, वो प्रोसीजर हमको फॉलो करना पड़ता है और उसी प्रोसीजर के थ्रू ही हमको हमारे अकाउंट को प्रोसीड करना पड़ता है। इसके लिए हमको उसमें यूज़फुल होता है अगर हमें थियरी नॉलेज है तो यहाँ पे ये ध्यान देना है। अगर क्रॉस चेक है तो सिंपल सी बात है, उसका जो एंट्री होगा वो कहाँ पे होगा, रिसीव साइड के बैंक कॉलम में। यहाँ पे एक जर्नल एंट्री भी दिया है, जर्नल एंट्री भी आप बाय हार्ट करके ले लो। बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट एंड इनकम डेटर्स, मतलब जिसके भी थ्रू वो चेक मिला है वहाँ पे, अगर सेल के थ्रू मिला है तो सेल आएगा, अगर आपने एसेट बेचा है तो एसेट आएगा, अगर इनकम है तो इनकम आएगा, डेटर से मिला है तो डेटर्स आएगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स और एसेट्स और इनकम और डेटर्स अकाउंट, तो यहाँ पे ये एंट्री होगी। उसके बाद में अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है आपका बेरर चेक रिसीव्ड। देखो अभी यहाँ पे दो बातें मैं आपको बता दूं, आपके बुक में ये फॉर्मेट है इसी टॉपिक में, बेरर चेक का और क्रॉस चेक का। वो फॉर्मेट अभी मैं आपको होमवर्क देता हूँ, सभी लोगों ने वो फॉर्मेट बनाना है और बेरर चेक और क्रॉस चेक का फॉर्मेट भी आपको अच्छी तरह से आना चाहिए, क्योंकि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बेरर चेक और क्रॉस चेक मैं आपको एक क्लियर बता देता हूँ। बेरर चेक जो होता है वो चेक जो है वो उस चेक को कैश ही ट्रीट करते हैं हम लोग, उस चेक को हम लोग कैश ट्रीट करते हैं क्योंकि वो अनक्रॉस रहता है। ये क्रॉस क्या होता है, ये जो चेक रहता है एक स्क्वायर में, ये ऐसा इस तरह से चेक रहेगा। जैसे मैं आपको बता दूं, यहाँ पे ये चेक हो गया आपका, यहाँ पे रहता है पे करके और यहाँ पे अमाउंट रहेगा और यहाँ पे बैंकिंग का जो भी इंफॉर्मेशन रहेगा और यहाँ पे साइन रहता है। तो ये जो राइट साइड का, सॉरी लेफ्ट साइड का जो कॉर्नर है, ये लेफ्ट साइड के कॉर्नर को ऐसे दो पैरेलल लाइन हम ड्रॉ करते हैं तो ये क्रॉस चेक हो जाता है। दिस इज कॉल्ड क्रॉस चेक। तो ये क्रॉस चेक हो गया और अगर ये क्रॉस नहीं है तो वो बेरर हो गया। तो बेरर चेक वो कैश के, वो हम बेरर चेक को कैश ही ट्रीट करते हैं, इट इज़ लाइक अ कैश एंड रिकॉर्डेड ऑन द रिसिप्ट साइड इन द कैश कॉलम, और वो कैश कॉलम के रिसिप्ट साइड में रिकॉर्ड होता है बेरर चेक। अभी मैंने आपको क्लियर कट इन्फॉर्मेशन बता दिया क्रॉस चेक क्या होता है और बेरर चेक क्या होता है। अगर लेफ्ट साइड कॉर्नर को चेक को आपने दो पैरालाइन ड्रॉ कर दिया, पैरेलल लाइन, तो वो क्रॉस हो गया, मतलब वो फिर उसमें जिसका, उस चेक में जो बेरर है जिसका नाम है, वो पैसा उसी के अकाउंट में ट्रांसफर होगा, वो पैसा उसी के अकाउंट को जाएगा। लेकिन बेरर में ऐसा नहीं है। बेरर में अगर वो चेक बेरर है तो वहां कोई भी किसी का नाम डाल के वो पैसा विड्रॉ कर सकता है।
तो यहाँ पे आपको 2 कॉलम कैश बुक में ध्यान देना है, क्लियर कट दिया है। अगर बेरर चेक है तो उसको आपको रिसिप्ट साइड में लिखना है। अगर आपको बेरर चेक मिला, यू हैव टू राइट टू द रिसिप्ट साइड। लेकिन डिफरेंट क्या है कि वो रिसिप्ट साइड में लिखेंगे तो उसका अमाउंट आपको कैश कॉलम में लिखना है, बैंक कॉलम में नहीं लिखना है। यहाँ पे ये ध्यान देना, एकदम क्लियर कट इंस्ट्रक्शन यहाँ पे दिया हुआ है। देखो मैं आपको बता देता हूँ। Bearer check received is treated as cash and recorded on receipt side in the cash column as to sales, asset, income, debtors and the debtors account। लेकिन इसका जो हम लोग इफेक्ट है वो सीधा कहाँ मारेंगे, कैश कॉलम में। और इसकी एंट्री जो है कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, एसेट ऑब्लिक इनकम ऑब्लिक डेटर्स अकाउंट। तो ये अभी 2 फर्क आपको पता चल गया क्रॉस चेक और बेरर चेक में। उसके बाद में आ जाओ अभी नेक्स्ट पॉइंट पे, चेक रिसीव्ड एंड डिपॉजिटेड इनटू बैंक ऑन द सेम डे। तो अगर ये सिचुएशन है तो आपको तुरंत उसकी एंट्री बैंक कॉलम में ही कर देना है। देख लो पहले आप ट्रांजेक्शन अच्छे से देखो, ये मॉनिटर पे क्लियरली, वहाँ पे पेन भी रखा हूँ मैं। चेक रिसीव्ड एंड डिपॉजिटेड इनटू बैंक ऑन द सेम डे। अगर ये पोजीशन है तो डायरेक्ट आपको इसकी एंट्री रिसीप्ट साइड में करनी है, और रिसीप्ट साइड में करके और डायरेक्ट उसका अमाउंट जो है बैंक कॉलम में लिखना है, यहाँ पे दिया हुआ है। और इसकी एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स, एसेट, इनकम, डेटर्स, लाइक दैट। यहाँ पे एक चीज क्लियरली नहीं दिया है, आपके दिमाग में हो सकता है डाउट हो, तो भी मैं क्लियर करना चाहता हूँ। आई वुड लाइक टू क्लियर दैट। देखो अगर दो ट्रांजेक्शन है, एक ट्रांजेक्शन में दिया है चेक रिसीव्ड ऑफ अमाउंट सो एंड सो फ्रॉम पार्टी, तो अभी चेक रिसीव्ड है, हम उसको बेरर ही पकड़ेंगे, तो हम उसकी एंट्री कैश कॉलम में करेंगे, क्योंकि वहां पे इंफॉर्मेशन ऐसा नहीं दिया है जैसा यहाँ पे दिया है। अगर हमें प्रॉब्लम में, जो हमें प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आता है, जो प्रॉब्लम मतलब ट्रांजेक्शन, जो ट्रांजेक्शन हमें सॉल्व करने के लिए आता है, अगर उसमें ये दिया हुआ है कि चेक रिसीव्ड फ्रॉम द पार्टी, फ्रॉम द सो एंड सो पार्टी फॉर द अमाउंट सो एंड सो, तो फिर हम उसकी एंट्री कैश कॉलम में ही करेंगे। लेकिन यहाँ पे अलग दिया हुआ है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, चेक रिसीव्ड एंड डिपॉजिटेड इनटू बैंक ऑन द सेम डे, इसलिए डायरेक्ट हम उसकी एंट्री कहाँ पे कर रहे हैं, बैंक कॉलम में। यहाँ ध्यान देने का है, मैंने इसको बाइफिकेट करके आपको बताया, यहाँ पे डायरेक्ट दिया हुआ है। अब उसके बाद में आ गया नेक्स्ट पॉइंट, चेक रिसीव्ड डिसऑनर। तो यहाँ पे मैं आपको डिसऑनर का मतलब बता देता हूँ। डिसऑनर का मतलब होता है चेक का बाउंस हो जाना। चेक का बाउंस होने का कई रीजंस होता है। कभी कभी जो अकाउंट होल्डर है उसके अकाउंट में बैलेंस नहीं होता तो बाउंस हो जाता है चेक, या कभी कभी चेक रॉन्ग रहता है, चेक जो फिल किया है वो रॉन्ग है तो वो डिसऑनर हो जाता है, या कभी कभी बैंक का क्वेरीज रहता है तो डिसऑनर हो जाता है। मीन्स देयर आर लॉट ऑफ रीजन, दे इट मे बी a cause for the dishonor of the check. So the check received has to be presented to the bank for collection within 3 months from the date of drawing, otherwise it becomes worthless. ये भी एक as per the bank article there is the information, अगर हमने किसी पार्टी ने हमको चेक दिया तो वो 3 महीने के अंदर हमें उसको बैंक में डिपॉजिट करना पड़ता है, और अगर वो 3 महीने के अंदर हमने बैंक में जमा नहीं किया तो वो डिस्क्वालीफाई कर जाता है, मतलब ऑफकोर्स इट विल बी डिसऑनर। तो व्हेन बैंक रिफर्स टू पे द अमाउंट टू द पेई ड्यू टू सर्टन रीजंस, द चेक इज सेड टू बी डिसऑनर। मैंने आपको बताया व्हाट आर द डिफरेंट रीजन व्हाई चेक इज गोइंग टू बी डिसऑनर्ड। So dishonored check is recorded on the payment side to cancel the effect to the receipt side. तो ये इसका मतलब आप क्लियरली समझ लो। अभी थियोरेटिकल इंफॉर्मेशन है, हो सकता है आपको इसमें लिटिल बिट कंफ्यूजन रहेगा, लेकिन जब हम लोग प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो उस समय आपका ये कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। एक्चुअली ये होता क्या है,
अभी किसी पार्टी ने हमें चेक दिया तो एक्चुअली हम उसको कैश बुक के कैश कॉलम में रिसिप्ट साइड में एंट्री करते हैं, और फिर बाद में हमने उस चेक को दूसरे दिन बैंक में जमा किया, तो फिर अब डायरेक्ट हम रिसिप्ट के बैंक में नहीं दिखा सकते। ये भी बात समझ लो, डायरेक्ट उसको हम फिर से बैंक में डायरेक्ट नहीं दिखा सकते। पहले हमने जो पहले कैश में एंट्री मारी है रिसिप्ट साइड में, उसका इफेक्ट पहले खत्म करना होगा। पहले पेमेंट में कैश में एंट्री मार के और फिर उसके बाद में हम रिसिप्ट साइड में बैंक में दिखा सकते हैं। तो अगर हमने बैंक में दिखा दिया मतलब वो बैंकिंग ट्रांजैक्शन हो गया, लेकिन 2 दिन 10 दिन 15 दिन के बाद में पता लगा वो चेक जो हमने बैंक में जमा किया था वो डिसऑनर हो गया, बाउंस हो गया, तो अब उसका इफेक्ट हमें खत्म करना है। तो उसके इफेक्ट को खत्म करने के लिए हमको क्रॉस एंट्री मारनी पड़ती है। वो क्रॉस एंट्री मतलब क्या है कि द सेम एंट्री वी मेक टू द पेमेंट साइड बैंक कॉलम, और हम क्या करते हैं वही सेम एंट्री उतने अमाउंट का हम पेमेंट भी दिखा देते हैं। मतलब वो जो रिसिप्ट हमने दिखाया था उसका इफेक्ट खत्म करने के लिए उसकी करस्पॉन्डिंग इफेक्ट हम लोग कहाँ मार देते हैं, बैंक में। तो यहाँ पे ये ध्यान देना है, ये यहाँ पे यही बात है। तो इसकी जर्नल एंट्री है पर्सन्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। उसके बाद में फिर नेक्स्ट है चेक इशूड। चेक इशूड मतलब चेक दिया, पेमेंट चेक से किया। चेक कैन बी इशूड फॉर कैश परचेज, पेइंग कमीशन, पेइंग इंटरेस्ट, settlement of creditors account. It can be used for withdrawing cash from bank and it is recorded on the payment side in the bank column. जो बातें मैंने रिसिप्ट साइड के लिए बताया चेक का, वो पेमेंट साइड के लिए क्लियर है। अगर चेक हमने इशू किया है तो हमको डायरेक्ट बैंक कॉलम में ही दिखाना है, उसमें किसी भी सिचुएशन में कैश कॉलम में नहीं दिखाना है। जैसा कि इसके ऊपर हमने बताया, मैंने आपको बताया कि अगर वो क्रॉस चेक है तो डायरेक्ट आप बैंक में दिखाओगे, बेरर चेक है तो पहले आप उसको कैश बुक में दिखाओगे, कैश कॉलम में। यहाँ पे चेक इशूड हुआ तो ऐसा कुछ भी नहीं है, चेक इशूड हुआ डायरेक्ट बैंक कॉलम में, पेमेंट साइड के बैंक कॉलम में दिखाना है। It can be used for withdrawing cash from bank. It is recorded on the payment side in the bank column as by purchase, by expenses, by asset, by creditors account. जर्नल एंट्री इसकी करस्पॉन्डिंग इफेक्ट होगा परचेस, एक्सपेंसेस, एसेट्स और क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। उसके बाद इशूड चेक डिसऑनर, तो ये डिसऑनर अगर डिसऑनर हो गया तो फिर से इसकी करस्पॉन्डिंग इफेक्ट हमको उसका अपोजिट मारना है। चेक इशूड किया था तो हमने उसका इफेक्ट कहाँ मारा था, पेमेंट साइड में, पेमेंट साइड में बैंक कॉलम में। अब चेक इशूड चेक डिसऑनर हो गया तो फिर से हम उसकी करस्पॉन्डिंग, अभी यहाँ पे ऊपर वाले में एंट्री में बैंक क्या हुआ था, क्रेडिट, तो अभी हम उसकी जब करस्पॉन्डिंग इफेक्ट मारेंगे उसके इफेक्ट को खत्म करने के लिए, तो ये डेबिट, ये क्रेडिट के बदले इसको क्या करेंगे यहाँ पे डेबिट, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू पर्सन अकाउंट हो जाएगा यहाँ। अब उसके बाद में नेक्स्ट है कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज। ये पर्सनल यूज हमको पता है, पर्सनल एक्सपेंसेस क्या होता है, ये ड्राइंग होता है। तो अगर यहाँ पे हमको ध्यान देना है कि अगर बिजनेसमैन ने पैसा विड्रॉ किया है पर्सनल यूज़ के लिए तो ये ड्राइंग होता है, और इसके लिए हम लोग इसका इफेक्ट कहाँ मारेंगे, कैश बुक के पेमेंट साइड में। वी विल मेक द एंट्री टू इन कैश बुक पेमेंट साइड इन कैश कॉलम बाय ड्राइंग अकाउंट, और इसकी जर्नल एंट्री होगी ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट अगर बैंक से विड्रॉ किया है तो। उसके बाद में नेक्स्ट है बैंक एडवाइसेस एंड स्टेटमेंट। यहाँ पे वही सारे इंफॉर्मेशंस है जो मैंने आपको इसके पहले बताया हुआ है। उसके बाद में दूसरा पॉइंट है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, वो है डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर इनटू बैंक। ये भी आता है, ये भी ट्रांजैक्शंस आता है।
So now direct deposit by customer into bank. When customer directly deposited check to the bank or money to the bank, मीन्स बैंक ऑफ द बिजनेसमैन, यहाँ पे ये देखना है आपको, कोई भी कस्टमर बिजनेसमैन के बैंक में पैसा डायरेक्ट जमा किया तो उसका जो इफेक्ट है हम लोग कैश बुक के रिसिप्ट साइड में बैंक कॉलम में करेंगे. इंस्टेड ऑफ पेइंग बाय कैश और चेक फॉर सेटलमेंट ऑफ अकाउंट, कस्टमर्स may directly deposit money into businessman bank account. This is recorded on the receipt side in the bank column as to customer. So journal entry will be bank account debit to customer account. उसके बाद में ये इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, यहाँ पे दोनों बातें आपको समझनी है. अगर लोन है, बिजनेसमैन ने लोन लिया है तो वहाँ पे इंटरेस्ट अलाउड नहीं होगा, देन इंटरेस्ट डिडक्टेड बाय द बैंक. लेकिन यहाँ पे इंटरेस्ट अलाउड बाय द बैंक, इसका मतलब है कि जो बैंक में बैलेंस है उसके ऊपर बैंक ने इंटरेस्ट क्रेडिट किया है बैंक. तो बैंक अलाउ इंटरेस्ट ऑन द बैंक डिपॉजिट, दिस इज इनकम फॉर द ट्रेडर. तो ये इनकम होता है ट्रेडर के लिए. एंड देयर फॉर इंक्रीज इन द बैलेंस इन द बैंक अकाउंट. तो ये इसकी जो एंट्री होगी वो रिसिप्ट साइड में कैश बुक के बैंक कॉलम में होगा. हियर इट इज क्लियरली गिवन, इट इज रिकॉर्डेड ऑन द रिसिप्ट साइड इन द बैंक कॉलम एज टू इंटरेस्ट. जर्नल एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट. उसके बाद में जो मैंने अभी आपको इसके साथ में से बताया वही सेम यहाँ पे नीचे पॉइंट दिया है. इंटरेस्ट अगर डिडक्ट किया तो दैट इज इंटरेस्ट चार्ज ऑन ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी. ओवरड्राफ्ट पे अगर इंटरेस्ट चार्ज हुआ तो आपको उसका जो इफेक्ट है हम लोग कहाँ पे दिखाएंगे, बैंक कॉलम में पेमेंट साइड में दिखाएंगे. यहाँ पे देखो दिया है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी. आई टोल्ड यू ऑलरेडी द मीनिंग ऑफ ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी. और फिर यहाँ पे देखो इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट अमाउंट which is the expenditure to the trader, so it is going to be record to the payment side. उसका रिकॉर्डिंग, उसका जो रिकॉर्ड है, उसकी जो एंट्री है हम लोग कहाँ करेंगे, पेमेंट साइड में करेंगे बैंक में, बाय इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट अकाउंट. तो इसकी जर्नल एंट्री होगी इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. अगर मैं अभी ये मतलब मैं एंट्री डायरेक्ट आपको बोलते जा रहा हूँ क्योंकि मैं एक बात क्लियर समझता हूँ कि आपको जर्नल एंट्री इसके पहले जो पढ़ाया है उसमें आपको क्लियरली सारी बातें बताया है. जैसे यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट हो गया तो ये नॉमिनल अकाउंट हो गया. तो वी कैन अंडरस्टैंड इजीली दैट व्हाई द इंटरेस्ट इज डेबिटेड एंड व्हाई बैंक अकाउंट इज क्रेडिटेड, बिकॉज इट इज गोइंग टू बी पेड बाय बैंक एंड द बैंक इज विच अकाउंट, पर्सनल अकाउंट. एंड व्हाट इज द नॉर्म्स ऑफ पर्सनल अकाउंट, क्रेडिट द गिवर एंड देयरफॉर बैंक अकाउंट इज क्रेडिटेड. And why interest is debited, because it is nominal account shows, and nominal account rule is debit all expenses and losses. So interest is being paid by the businessman from their bank, so it is loss to the, it is expenses to the trader and therefore it will be debited. Bank charges debited by the bank, तो भी पेमेंट साइड में ही आएगा, वो कैश बुक के पेमेंट साइड में बैंक कॉलम में एंट्री आएगी इसकी. और उसके बाद में है डिविडेंड और इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय बैंक on behalf of trader. Dividend I told you earlier in lecture, dividend is nothing, it is a portion of profit which is going to be distributed to the shareholder, that is called dividend. जो शेयर होल्डर खरीदता है तो वो कैपिटल कंपनी को होता है, वो उस कैपिटल को कंपनी बिजनेस में यूज करती है और फिर बिजनेस में प्रॉफिट होता है. तो बिजनेस में प्रॉफिट होने के बाद में उनका जो शेयर है उसी रेशो में उस प्रॉफिट को वो डिस्ट्रीब्यूट करता है कंपनी शेयर होल्डर को, उसको डिविडेंड बोलते हैं. तो डिविडेंड और इंटरेस्ट अगर कलेक्ट हुआ बैंक के द्वारा तो डायरेक्ट इसकी एंट्री हम लोग कहाँ करेंगे, कैश बुक के रिसिप्ट साइड में, कैश कॉलम में नहीं करेंगे, बैंक कॉलम में करेंगे. यहाँ पे दिया हुआ है.
on the receipt side in bank column as to interest on investment. उसके बाद में अगर कोई स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन है, ये स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन क्या है मैं आपको क्लियर कट बता देता हूँ। कुछ एक्सपेंसेस जो है कंपनी को, फर्म को, ऑर्गेनाइजेशन को रूटीन और फ्रीक्वेंट टाइम पे करना पड़ता है, तो उस समय बैंक या तो कंपनी से पूछेगा, ऑर्गेनाइजेशन से पूछेगा, और नहीं तो ऑर्गेनाइजेशन उस टाइम पे हमेशा टाइम टू टाइम ये गाइडलाइन बैंक को देगा, तब वो पेमेंट बैंक करेगा। लेकिन स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन में एक ही बार एक रिजोल्यूशन पास करके वो ऑर्गेनाइजेशन बैंक को दे देता है टाइमली पेमेंट करने के लिए। तो ये स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन के कारण बैंक फिर वो परमिशंस नहीं लेता है बिजनेसमैन से, ट्रेडर से, बार बार वो परमिशन नहीं लेता है। तो जो पेमेंट है, जो डेली पेमेंट है, वो पेमेंट बैंक अपने शेड्यूल टाइम पे उसका पेमेंट खुद करते रहता है। तो अगर ऐसा कोई सिचुएशन है जिसका पेमेंट स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन द्वारा होता है, तो भी उसका जो इफेक्ट है वो बैंक अकाउंट कैश बुक के क्रेडिट साइड में, मतलब पेमेंट साइड में, बैंक कॉलम में होगा। दिस इज रिकॉर्डेड टू द पेमेंट साइड इन द बैंक कॉलम इन कैश बुक। उसके बाद में ट्रांसफर अमाउंट। ये ट्रांसफर अमाउंट में आपको यहाँ देखना है कैश क्रेडिट और लोन अकाउंट। तो अभी अगर अमाउंट जो है लोन से करंट में गया, करंट अकाउंट में गया, तो डायरेक्ट वो रिसिप्ट साइड में आएगा। करंट अकाउंट जो होता है ये बिजनेस अकाउंट होता है, मैंने आपको पहले ही बताया। और ये लोन अकाउंट या सेविंग अकाउंट से भी कभी कभी करंट अकाउंट में पास होता है, तो डायरेक्ट उसकी एंट्री। अगर कहीं बाहर से किसी दूसरे फर्दर अकाउंट से पैसा डायरेक्ट करंट अकाउंट में आ गया, तो उसका इफेक्ट कैश बुक के रिसीप्ट साइड में आएगा। और कौन से कॉलम में आएगा? बैंक कॉलम में डायरेक्ट आएगा। तो यहाँ पे एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश क्रेडिट और लोन अकाउंट। उसके बाद में अगर अमाउंट ट्रांसफर हुआ करंट से लोन को या कैश क्रेडिट को, तो ऑफकोर्स इसका जो इफेक्ट है वो कहाँ पे जाएगा? पेमेंट साइड में, कैश बुक के पेमेंट साइड में, और बैंक कॉलम में इसकी एंट्री होगी। तो यहाँ पे दिया हुआ है देयरफॉर इट इज रिकॉर्डेड ऑन द पेमेंट साइड इन बैंक कॉलम बाय कैश और क्रेडिट और लोन अकाउंट। सो एंट्री विल बी बाय कैश क्रेडिट ऑब्लिक लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। उसके बाद में सेविंग से अगर करंट अकाउंट में ट्रांसफर हुआ, तो भी इसका जो इफेक्ट होगा वो कैश बुक के रिसिप्ट साइड में, बैंक कॉलम में होगा। और उसके बाद में अगर करंट अकाउंट से पर्सनल सेविंग अकाउंट में गया, तो भी उसका जो इफेक्ट है वो पेमेंट साइड में होगा कैश बुक के। यहाँ पे देखो दिया है it is going to be recorded to the payment side in bank column by drawing like that। तो ये हो गया आपका ये डिटेल ट्रांसफर वाला। अब उसके बाद में मेन जो इफेक्ट है वो आपका आ गया है कैश बुक में कॉन्ट्रा एंट्री। ये मेन एंट्री है, डबल कॉलम, 2 कॉलम कैश बुक में कॉन्ट्रा एंट्री, ये मेन है। देखो मैं थ्योरेटिकली अभी कॉन्ट्रा एंट्री के बारे में आपको यहाँ जो लिखा है वो बता देता हूँ, लेकिन ये प्रैक्टिकली आप तब समझोगे जब मैं प्रॉब्लम सॉल्व करके आपको बताऊंगा। उस समय ये आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। एक्चुअली कॉन्ट्रा, अभी सिर्फ आप इतना ही सुन के लो, इतना ही ध्यान रखो कि कॉन्ट्रा एंट्री में जो सिचुएशन होता है, एक ही ट्रांजेक्शन के 2 इफेक्ट और दोनों साइड होते हैं। वो भी रिसिप्ट साइड में भी होगा उसका इफेक्ट और पेमेंट साइड में भी होगा। दैट इज कॉन्ट्रा इफेक्ट, उसी को हम लोग कॉन्ट्रा इफेक्ट बोलते हैं। सर्टन ट्रांजेक्शन अफेक्ट कैश अकाउंट एंड बैंक अकाउंट but with opposite effect. It may decrease the cash balance and increase bank balance, or increase cash balance or decrease bank balance at the same time. In columnar cash book, cash account and bank account appear under the same heading of cash book। मतलब यहाँ पे आपको ये ध्यान देना है कि इस ट्रांजेक्शन में जैसे फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल भी आपको बता देता हूँ। डिपॉजिटेड टू बैंक ₹5,000, ये ट्रांजेक्शन अगर होगा तो इसकी कॉन्ट्रा एंट्री होगी, क्योंकि आपको पहले कैश बुक के पेमेंट साइड में कैश कॉलम में एंट्री मारनी होगी, तब उसके बाद में सेकेंड इफेक्ट उसका जो है आप रिसिप्ट साइड में बैंक कॉलम में मारेंगे। तो इस तरह वो अभी तो मैंने आपको थ्योरेटिकल बता दिया, लेकिन जब प्रैक्टिकली वो मैं सॉल्व करूंगा देन आई विल टेल यू व्हाट इज द थिंग्स प्रॉपरली। और फिर ये कॉन्ट्रा एंट्री हो गया, उसी को हम लोग कॉन्ट्रा एंट्री बोलते हैं। मतलब आपको यहाँ पे सिर्फ इतना ध्यान देना है कि कॉन्ट्रा एंट्री में
जो सिचुएशन होगा वो होगा कि दोनों साइड एक ही ट्रांजेक्शन का दोनों साइड इफेक्ट आएगा, जो कि रिसिप्ट में भी आएगा और पेमेंट में भी आएगा। तो ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके आगे कैरी ऑन करेंगे।